Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hopefully you are fine and doing good. We have started chapter number 5 in our previous lecture. Today we are going to discuss the next topic of this chapter, index numbers. Today our topic is unweighted index numbers. These index numbers measure relative change in a group of related variables with respect to a base without giving relative importance or weights to all the variables. There are two methods of constructing this type of index numbers. First one is simple aggregative method and second one is simple average of relative method. The first method is simple aggregative method. In this method of computing a price index, the total of the prices of commodities in a given year is expressed as percentage of the total of the price of commodities in the base year. In symbols, we have written it as simple aggregate price index number is equal to summation Pn divided by summation P naught into 100, where summation Pn is the sum of prices of commodities in the given year and summation P naught is the sum of prices of the commodities in base year. The second method is simple average of relative method. In this method we use the average such as arithmetic mean, geometric mean, median of the price relatives or link relatives. For example, using arithmetic mean, simple arithmetic mean of relative price index is equal to summation Pn over P naught divided by n into 100, where summation Pn over P naught is the sum of all commodity price relative and n is the number of commodity price relative used. This method is also easy to apply, and the only disadvantage of this method is that it gives equal weights to all commodities. Now, uses of index numbers. Several economical and business policies are guided by index numbers. The export and import indices help to measure the changes into the ratio of export and imports of the country. The quantity index numbers are used to study the fall or rise in the volume of factory production, volume of imports, exports, etc. Index numbers are of great helpful in forecasting business conditions. The price index numbers are used to measure the purchasing power of money. Index number can be used in education for IQ comparison and effectiveness of teaching system. Index number जो हैं वो हम they are mainly used in business and economic field. They can also be applied in many other fields, and for example index number can be used in education to compare the intelligence of a student with that of an average student of his age or class. ठीक है. They can also be used to measure the effectiveness of teaching system in the field of health. Index number can be used to show the general health conditions of the people and to indicate the adequacy of hospital facilities. ठीक है. तो इन सब के लिए हम इंडेक्स नंबर जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से कंट्री की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसकी जो राइज और फॉल है उसमें उसको जब हम मेजर करते हैं चेंज उसमें जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रेशो जो है उसको जब हम मेजर करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि क्या चेंजेस हैं उसमें, तो वो भी हम इंडेक्स नंबर की मदद से ही करते हैं.
इसी तरह से कि फैक्ट्री में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी प्रोडक्शन को देखने के लिए एक बिजनेसमैन जो है वो ये देखता है कि किस तरह से उसने पिछले साल अगर ये चीज़ उसने प्रोड्यूस की तो नेक्स्ट ईयर अगर वो उसकी डिमांड ज़्यादा थी या नहीं थी, या कितनी उसने प्रोड्यूस की और कितनी उसमें जो है वो सेल हुई, कितनी नहीं हुई, तो उसके हिसाब से वो अपनी नेक्स्ट प्रोडक्शन जो है वो उसके लिए प्लानिंग करता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से जो है परचेजिंग पावर ऑफ मनी के चीज़ों की प्राइस जो है वो किस तरह से उसमें चेंज आया है, उसको कमोडिटीज़ जो हैं, जो अशिया हैं, उनकी प्राइसेस में क्या कमी आई है या क्या उसमें राइज हुए हैं प्राइसेस उनकी, तो उसमें जो चेंज है उसको हम भी प्राइस इंडेक्स नंबर्स की मदद से हम उसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं। Now, limitations of index numbers. Different methods of construction yield different results. Comparisons over long period are not reliable. Sampling errors creep in the calculation of index numbers. All index numbers are not suitable for all purposes. It is not possible to take into account all changes in production. Example 5.3 Part A from your book on page 219. And the following table shows wholesale prices of wheat, rice and mutton for the year 1972, 1973 and 1974. Compute the simple aggregate wholesale price indices for 1973 and 1974 using 1972 as base. ठीक है, हमने मेथड इसमें यूज करना है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स फॉर 1973 हम फाइंड करेंगे और 1974 दोनों ईयर्स के लिए हमने फाइंड करनी है, जबकि 1972 जो है वो हमारे पास बेस ईयर है। ठीक है, अब क्या फार्मूला है एग्रीगेटिव सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स का? समेशन पी एन डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट। ठीक है, आपने पी एन जो करंट ईयर की प्राइसेस हैं उसका सम जो है डिवाइड होगा बेस ईयर की प्राइसेस से। पी एन आपकी करंट ईयर की प्राइसेस को शो कर रहा है और पी नॉट जो है ये बेस ईयर प्राइसेस को शो कर रहा है। ठीक है, तो पी एन जो है वो आपके लिए क्या है, अभी 1973 की जो प्राइसेस हैं और 1972 की जो प्राइसेस हैं वो आपके लिए पी नॉट है। ठीक है, तो आपने समेशन पी एन हमारे पास आ रहा है 432। जब हमने प्राइसेस को प्लस किया 32 प्लस 100 प्लस 300 तो ये हमारे पास आ रहा है 432 एंड बेस ईयर प्राइसेस जो हैं उनका सम है हमारे पास 350। इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे 432 डिवाइडेड बाय 350 इंटू 100, तो ये हमारे पास सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स आ जाएगा 123.43%। ठीक है, अब सेकंड इसमें हमने फाइंड करना है किसके लिए? अब इसमें हमने ये देखा कि 1973 में 123.43 जो है ये परसेंट बन रहा है, यानी 1972 की ऑफ दोज इन 1972 आर 23.43% ग्रेटर। ठीक है, अब इसमें हमने उसमें राइज देख लिया कि इसमें प्राइसेस जो हैं वो उसकी बढ़ रही हैं। नेक्स्ट इसमें हमने 1974 फॉर द ईयर 1974 हमने सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है। अब हमारे लिए जो करंट ईयर है वो हमारे पास 1974 है और बेस ईयर इसका 1972 ही है। ठीक है, अब इसकी 1974 की जो प्राइसेस हैं ये हमारी पी एन हो जाएंगी और 1972 की जो प्राइसेस हैं ये हमारी पी नॉट है। ठीक है, इनका सम जो है समेशन पी एन ये हमारे पास आ रहा है 547 और समेशन पी नॉट हमारे पास है 350। इसको डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 156.29। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि 1972 की प्राइसेस से 1972 की प्राइसेस में 56.29% जो है वो ग्रेट हुई हैं या उससे वो ज़्यादा हुई हैं प्राइसेस। ठीक है, अब है 5.3 का बी पार्ट है।
इसी एग्जाम्पल का बी पार्ट है ऑन पेज 220. द एवरेज एनुअल प्राइसेस ऑफ wheat, rice, cotton and ghee for the years 1960 to 1964 are given in the following table. Construct price index numbers with 1960 as base using the simple average or mean of relative method. ठीक है, अब हमने सेकेंड मेथड जो हमने पढ़ा है आज वो है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड. इस एग्जांपल में हमने वो मेथड यूज़ करना है. फर्स्ट हमने पढ़ा था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो कि हमने अभी इस एग्जांपल में डिस्कस किया. अभी इस पार्ट में हम सेकंड मेथड जो हमने पढ़ा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब इसमें हमारा जो फार्मूला है सिंपल एग्रीगेट ऑफ रिलेटिव मेथड में वो किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू समेशन पी एन ओवर पी नॉट, यानी पी एन ओवर पी नॉट का होल का समेशन डिवाइडेड बाय एन इंटू 100. ठीक है, डिवाइडेड बाय एन इंटू 100. अब एन पे उसको हमने डिवाइड किया डिवाइडेड बाय एन इंटू 100. अब समेशन पी एन ओवर पी नॉट क्या है? सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइस रिलेटिव्स हैं हमारे पास, और एन क्या है? नंबर ऑफ कमोडिटी प्राइस रिलेटिव्स जो कि हमने यूज़ किए उसमें. अब हमने इसका एक टेबल सा फाइंड करना है किस तरह से. उसमें हमें पी एन ओवर पी नॉट का सम चाहिए. ठीक है, अब हमारे पास ईयर्स हैं 1960 है, 61 है, 62, 63 और 64. ठीक है, ये ईयर्स हैं हमारे पास. और वीट की हमें प्राइसेस दी हुई हैं, राइस की प्राइसेस इन ईयर्स में दी हुई हैं, कॉटन की और घी की दी हुई हैं. तो हमने हर एक के लिए प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करने हैं. पहले प्राइस रिलेटिव्स किस तरह से फाइंड होंगे कि हमारे पास जो बेस ईयर है वो कौन सा है? 1960 है. ठीक है, 1960 इज द बेस ईयर. तो हमने 1960 की प्राइसेस पे तमाम प्राइसेस को डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, और ये हमारे क्या कहलाएंगे? प्राइस रिलेटिव्स. ठीक है, अब 1960 की प्राइस हमारे पास जो है वो है 20 पे डिवाइड होगा और 100 से मल्टीप्लाई. तो ये फर्स्ट जो 1960 की जितनी भी प्राइसेस हैं वो हमारे पास सब कमोडिटीज़ के लिए हमारे पास आ जाएंगी 100 के इक्वल. ठीक है, और इसका सम जो है ये हमारे पास क्या आ रहा है? पी एन ओवर पी नॉट. ठीक है, ये प्राइस रिलेटिव्स पी एन ओवर पी नॉट है, और पी एन ओवर पी नॉट का सम जो है वो हमारे पास क्या है? 400 आ रहा है. ठीक है, फर्स्ट का हमारे पास 400 आ गया. ठीक है, अब नेक्स्ट हमने 1961 के लिए फाइंड करना है. तो 1961 की जो प्राइस है वो हमारे पास 21 है, और बेस ईयर प्राइस 20 है. तो 21 20 पे डिवाइड होगा और 100 से मल्टीप्लाई होगा. तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो पी एन ओवर पी नॉट या प्राइस रिलेटिव उसको कह लें, वो हमारे पास 1961 के लिए वीट का आ जाएगा 105. इसी तरह से राइस के लिए जो हम फाइंड करेंगे उसकी जो 1961 की जो प्राइस है राइस की वो 32 है, और 1960 जो बेस ईयर है उसकी प्राइस है 30. तो इसमें राइस के लिए जो 30 होगा ये उसके लिए बेस ईयर प्राइस है, और ये तमाम जो करंट ईयर प्राइसेस हैं वो इसके ऊपर डिवाइड होंगी और 100 से मल्टीप्लाई होंगी. तो हमारे पास जो राइस की 1961 की जो प्राइस आ रही है वो प्राइस रिलेटिव आ रहा है वो है 106.7. इसी तरह से नेक्स्ट जो 1962 के लिए हम फाइंड करेंगे प्राइस रिलेटिव ऑफ वीट और राइस और कॉटन और घी, सब के लिए हम इसी तरह से फाइंड करेंगे कि उनके जो बेस ईयर जो प्राइस होगी करंट ईयर प्राइसेस तमाम की तमाम अपने बेस ईयर प्राइस पे डिवाइड होंगी. इसी तरह कॉटन में देखें आपकी जो वैल्यू है सेकंड जो करंट ईयर है 1961 उसको हम डिवाइड करेंगे 120 पे. 120 उसका बेस ईयर प्राइस है. ठीक है, तो तमाम वैल्यूज जो कॉटन की हैं प्राइसेस जो हैं वो अपने बेस ईयर प्राइस पे 120 पे डिवाइड होंगी और 100 से मल्टीप्लाई होंगी. तो इस तरह से ये हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स आ जाएंगे. इसी तरह घी के लिए जो है 160 है. ठीक है, तो तमाम जो प्राइसेस हैं घी की वो करंट ईयर्स की वो डिवाइड होंगी 160 के ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई होंगी. तो इससे हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स आ जाएंगे फॉर घी. ठीक है, अब हमने तमाम का सम लेना है.
पी एन ओवर पी नॉट का हमें सम चाहिए, तो हमने इसका भी सम ले लिया 1960 की वैल्यूज़ का भी, 1961 की जो आई हैं हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स उनका सम हमने लिया 105, 106.7 प्लस 110 1 प्लस 112.5, ये हमारे पास आ रहा है 434.2। ठीक है, नेक्स्ट हमने 1962 के जो हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स आए हैं हमने उनका सम लिया, दीज आर 110 प्लस 110 प्लस 116.7 प्लस 125, तो ये हमारे पास 1962 के लिए आ जाएगा 461.7। इसी तरह से 1964 की 1963 की भी हमने उसका भी सम ले लिया और 1964 का भी। अब हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। अब इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए देखें आप कैसे करेंगे। फर्स्ट जो है वो इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए ये होता है कि 400 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा 400, हमारे पास फर्स्ट जो है वो 100 आ जाएगा। ठीक है, और अगली जो है वो 108.6 आ रहा है। 108.6 किस तरह से आ रहा है कि 100 इंटू 434 डिवाइडेड बाय, इसको हम 4 पे डिवाइड करते जाएंगे यानी इसका मीन लेते जाएंगे। ठीक है, तो ये 108.6 आ जाएगा। इसी तरह से 461.7 जो है इसका भी हम मीन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 115 पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो है उसको भी 4 पे, यानी हम इन सब का मीन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे इंडेक्स नंबर जिसके रिक्वायर्ड। ठीक है, नाउ एग्जांपल 5.3 पार्ट सी ऑन पेज 221 फ्रॉम योर बुक. Question is, use the simple average of relative method to find index numbers for the years 1965, 1966 and 1967 from the following data with 1964 as base and using mean and median as an average. ये डाटा है हमारे पास, कमोडिटीज़ हैं, सोप है, शुगर है, टी एंड टोबैको, और ईयर्स हैं हमारे पास 1964 से लेकर 1967 तक। ठीक है, 4 ईयर्स हैं हमारे पास और इनकी प्राइसेस हमें दी हुई हैं। अब हमने सबसे पहला जो स्टेप होगा हमने इसमें क्या फाइंड करना है, हमने मीन और मीडियन जो है एज एन एवरेज यूज़ करके हमने इंडेक्स नंबर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्या फाइंड करना होता है, प्राइस रिलेटिव्स लेने होते हैं जो कि इक्वल होते हैं पी एन ओवर पी नॉट। पी नॉट क्या है, ये बेस ईयर प्राइसेस हैं और पी एन जो हैं दीज आर करंट ईयर प्राइसेस। ठीक है, अब हमारे पास जो बेस ईयर है वो कौन सा है, यहाँ पे 1964 जो है वो हमारे पास बेस ईयर है। अब 1964 की जितनी भी प्राइसेस हैं, सोप की है, शुगर की है, या टी है, टोबैको है, इन सब की प्राइसेस जो हैं ये हमारे पास पी नॉट होंगी। 1965 की हमारे पास पी वन हो जाएंगी, 1966 की पी टू और 1967 की पी थ्री, यानी ये करंट ईयर प्राइसेस हैं हमारे पास, पी एन है। एन आपका 1 2 3 जितने भी ईयर्स होंगे करंट ईयर्स आप उसको उससे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस रिलेटिव फाइंड करने के लिए जैसे आपने पीछे अभी किया, हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं टेबल को। हम कमोडिटीज़ को ऊपर ले आए हैं और ईयर्स को हम जो है वो साइड पे हम ले आए हैं। ठीक है, तो 1964 के सामने सोप की जो है ये हमारे पास जो है ये करंट ये बेस ईयर प्राइसेस हैं सारी 1964 की, तो ऊपर सारी क्या आ जाएंगी 100, क्योंकि अपने ऊपर डिवाइड होंगी 1.50 जो है उसको अपने पे डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 ही आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो इसकी प्राइस है 1.20 है, शुगर की जो प्राइस है 1964 के लिए वो अपने ऊपर डिवाइड होगी 100 से मल्टीप्लाई तो 100 आ जाएगा। यानी बेस ईयर की जो प्राइस रिलेटिव जो आप लेते हैं वो तमाम के तमाम 100 के इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह से 1965 के लिए जब आप फाइंड करेंगे तो उसकी प्राइस आपके पास है 1.75 है, और सोप के लिए ठीक है वो 1965 की जो है वो 1.75 है, तो उसके लिए बेस जो है वो कौन सी है 1964 की प्राइस है जो कि 1.50 है। ये डिवाइड होगी 1.75 डिवाइडेड बाय 1.50 इंटू 100, तो ये आपके पास आ जाएगी 116.7।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्राइस है 1966 के लिए वो आपके पास है 2.00 और वो डिवाइड होगी 1964 की प्राइस पे जो कि बेस ईयर की प्राइस है 1.50, ठीक है। 2.00 डिवाइडेड बाय 1.50 इंटू 100, ये आपके पास आ जाएगा 133.3, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 225, प्राइस जो है 1967 के लिए 2.25 डिवाइडेड बाय 1.50 इंटू 100, तो ये आपके पास 1967 के लिए प्राइस आ जाएगी 150। अब हमने शुगर के लिए देखना है। शुगर की जो फर्स्ट है वो तो बेस ईयर की प्राइस है, वो अपने ऊपर डिवाइड होगी, 100 आ गई। अब 1965 के लिए देखें, आपके पास प्राइस जो गिवन है वो है 1.40 और वो डिवाइड होगी 1.20, क्योंकि बेस ईयर की प्राइस जो है वो 1.20 है शुगर की, ठीक है। तो 1.40 इज डिवाइडेड बाय 1.20 इंटू 100, तो ये भी आपके पास 116.7 ये वैल्यू आ जाएगी। फिर 1.50 नेक्स्ट प्राइस है 66 के लिए, वो डिवाइड होगी 1.50 डिवाइडेड बाय 1.20 इंटू 100, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 125.0, ठीक है। फिर 1.60 को आप डिवाइड करेंगे 1.20 पे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 133.3 1967 के लिए शुगर की, ठीक है। अब हमने टी के लिए फाइंड करना है। टी की जो बेस ईयर प्राइस है जो वो है P0 2.80, वो अपने ऊपर डिवाइड होगी तो फर्स्ट वैल्यू तो 100 आ जाएगी 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। और नेक्स्ट जो प्राइस है 65 के लिए टी की देखें वो है 3.00 डिवाइड होगी 2.80 पे और 100 से मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 107.1, ठीक है। इसी तरह से 1966 की जो प्राइस है टी की वो है 3.25 और वो डिवाइड होगी 2.80 पे और 100 से मल्टीप्लाई होगी तो वो वैल्यू हमारे पास आ रही है 116.1। इसी तरह से नेक्स्ट जो प्राइस है 1967 के लिए टी की वो है 3.40 और वो डिवाइड होगी 2.80 पे और मल्टीप्लाई होगी 100 से तो वो हमारे पास वैल्यू आ रही है 121.4, ठीक है। अब हमने टोबैको के लिए फाइंड करना है। तो फर्स्ट तो बेस ईयर प्राइस है वो अपने ऊपर डिवाइड होगी 100 से मल्टीप्लाई तो 100 आ जाएगा। नेक्स्ट जो 1965 के लिए उसकी प्राइस है वो है 4.20 और वो डिवाइड होगी 3.50 पे और 100 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 120, ठीक है। इसी तरह से 4.50 डिवाइड होगा 3.50 पे और 100 से मल्टीप्लाई तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 128.6। इसी तरह से 4.75 इज डिवाइडेड बाय 3.50 इंटू 100 तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 135.7, ठीक है। अब हमने इनका सम लेना है, तमाम वैल्यूज का हमने सम ले लिया और देखें 4 टाइम्स 100 है तो 400 हो जाएगा। इसी तरह से 1965 की तमाम जो हमने प्राइस रिलेटिव फाइंड की है उनका सम हमने किया 116.7 प्लस 116.7 प्लस 107.1 प्लस 120, ये हमारे पास सम आ गया 460.5। फिर हमने 1966 की जितनी भी प्राइस रिलेटिव्स थे 4 के 4 उन सबको प्लस किया, वो है 133.3 प्लस 125.0 प्लस 116.1 प्लस 128.6, ये हमारे पास सम आ जाएगा 503। इसी तरह से 1967 की जो प्राइस रिलेटिव्स हैं उन सबको हमने प्लस किया, वो हमारे पास है 150 प्लस 133.3 प्लस 121.4 प्लस 135.7 और ये सम हमारे पास आ जाएगा 140.4, ठीक है। अब हमने उसने हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि यूजिंग मीन हम इंडेक्स नंबर फाइंड करें और फिर मीडियन को यूज करके हम इंडेक्स नंबर फाइंड करें। अब मीन इनका क्या होगा कि नंबर ऑफ वैल्यूज 4 हैं, सम हमने कैलकुलेट किए हुए हैं, इन सम को हम नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे,
ठीक है। नंबर ऑफ कमोडिटीज़ जो है हमारी, हम वो हैं 400 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी तरह से 460.5 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 115.1 आ जाएगा। 503 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा 125.8। इसी तरह से 540.4 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135.1। अब हमने मीडियन को यूज़ करके इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। अब मीडियन को देखें, फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वैल्यूज़ हैं सारी, ठीक है। हमने इसी तरह से जो मीडियन हमारा आएगा वो दरमियान की दो वैल्यूज़ का, क्योंकि इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं तो दरमियान की दो वैल्यूज़ का हम मीन ले लेते हैं, ठीक है। तो 100 + 100 200 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 100 ही आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है 1965 की जो प्राइस रिलेटिव्स हैं, इनको आप देखें, इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में या तो एक पेज पे आप लिख लेंगे या फिर इसको अपने जो माइंड में है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। अब सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है, 107.1 है, और सेकंड नंबर पे कौन सी आ रही है, 116.7, और थर्ड पे 116.7। ये दो वैल्यूज़ हैं, और फोर्थ नंबर पे 120 आ रही है। अब दरमियान की जो दो वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं, 116.7 और 116.7। इन दोनों को प्लस करके इनका मीन ले लेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। 116.7 + 116.7 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 116.7 ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका मीडियन होगा। अब 1966 के लिए हमने मीडियन देखना है। इन तमाम प्राइस रिलेटिव्स को जो चारों के चारों हैं 1966 के सामने, ये हमने इनको भी असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर देना है। अब सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 116 है, अगली वैल्यू है 125, उससे अगली 128.6 है, और लास्ट जो हमारे पास आएगी 133.3। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अब दरमियान में कौन सी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, 125.0 और 128.6। ये दो वैल्यूज़ दरमियान में आ रही हैं तो इनका हम मीन ले लेंगे। 125.0 + 128.6 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 126.8। ये मीडियन आ गया। मीडियन आपको पता है आपने अनग्रुप डाटा में किस तरह से फाइंड करते होते थे, ठीक है। तो ये इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं आपके पास। अब 1960 के लिए हमने मीडियन कैलकुलेट करना है। अब इसकी चारों वैल्यूज़ को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या है, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है 121.4। उसके बाद आपकी सेकंड नंबर पे जो वैल्यू आ रही है वो है 133.3, या पेंसिल से आप इनके ऊपर लिख लें, नंबरिंग कर लें, और दरमियान की 3 और 2 और 3 जो वैल्यू होंगी उनका मीन आएगा आपके पास, ठीक है। 121.4 फर्स्ट पे आएगी, सेकंड पे 133.3 है, और थर्ड पे आएगी 135.7, और फोर्थ पे आपकी वैल्यू आ गई 150, ठीक है। आपने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया। अब दरमियान में जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं वो कौन सी हैं, 133.3 एंड 135.7, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ का आपने मीन ले लेना है, और वो मीन आपके पास आ रहा है 134.5। तो ये आपका इंडेक्स नंबर होगा यूजिंग मीडियन एज एन एवरेज। The next example is 5.4a. Find chain index numbers for the price data in example 5.3b using 1960 as base, ठीक है। 5.3b 19 पीछे हमने अभी जो एग्जांपल की है वहाँ से ये डाटा लिया गया है। 1960, 1961, 62, 63 और 64 ये हमारे पास ईयर्स हैं। वीट, राइस, कॉटन और घी की ये प्राइसेस हमें जो है ये टेबल गिवन है, ठीक है। अब ये टेबल हमने पीछे देखा है, तो उसमें हमने सबसे पहले जब चेन इंडेक्स की बात होती है, ये बात हमेशा याद रखें, उसमें हम लिंक रिलेटिव्स लेते हैं, ठीक है। जब आपकी फिक्स बेस मेथड की बात होती है उसमें हम क्या फाइंड करते हैं, या पीछे पढ़ चुके हैं, प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करते हैं। और जब चेन इंडेक्स की बात होती है तो फिर उसमें हम क्या फाइंड करते हैं, लिंक रिलेटिव्स। और लिंक रिलेटिव्स क्या होते हैं, पी एन ओवर पी एन -1। क्या मतलब है कि हर करंट ईयर
जो होगा नेक्स्ट, उसके लिए उसका पिछला साल जो होगा वो बेस ईयर होगा, यानी हर अगले साल की वैल्यू वो अपने पिछले साल की प्राइस पे जो है वो डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये होते हैं लिंक रिलेटिव, यानी एक चेन सा बनता जाएगा, हर अगले ईयर का पिछले ईयर से लिंक होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें ये हमेशा याद रखें, चेन इंडेक्स में क्या फाइंड करते हैं, लिंक रिलेटिव्स। तो लिंक रिलेटिव्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखें 1960 जो है, इसमें हम वो अपने ऊपर ही डिवाइड होगी वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये तमाम वैल्यूज उसके लिए हमारे पास 100 ही आ जाएंगी। अब नेक्स्ट जो 1961 के लिए जो वीट की प्राइस है वो है हमारे पास 21। तो 21 किस पे डिवाइड होगी, अपने पिछले ईयर की प्राइस पे जो कि 20 है, 20 पे डिवाइड होगी और 100 से मल्टीप्लाई होगी। 21 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, ये 105 आ जाएगा। फिर 1962 की प्राइस है हमारे पास 22 और उससे पिछले साल की प्राइस 21 है, तो 22 किस पे डिवाइड होगी, 21 के ऊपर, और 100 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारे पास 104.8 आ जाएगा। इसी तरह से 1963 की जो प्राइस है वो है 24 और उससे पिछले साल की प्राइस 22 है, तो वो उसके लिए बेस होगी। 24 डिवाइड होगा किस पे, 22 पे, और 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 109.1। नेक्स्ट ईयर है 1964 और इसकी प्राइस हमारे पास है वीट की 25 और इससे पिछले ईयर की 24 थी जो कि इसके लिए बेस ईयर है। ठीक है, तो आपने 25 को डिवाइड करना है किस पे, 24 पे, और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो लिंक रिलेटिव आ जाएगा फॉर 1964 फॉर वीट वो है 104.2। ठीक है, इसी तरह से आपने राइस के लिए फाइंड करने हैं। राइस की फर्स्ट तो 100 आ जाएगी, नेक्स्ट जो प्राइस है 1961 की वो 32 है, 32 किस पे डिवाइड होगी, 30 के ऊपर, और 100 से मल्टीप्लाई होगी, तो 106.7 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो 1962 की प्राइस है राइस की वो है 33 और 33 अपने पिछले साल की प्राइस पे डिवाइड होगी जो कि 32 है, 33 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100 और ये आपके पास आ जाएगा 103.1। इसी तरह से 35 जो प्राइस है 1963 की वो डिवाइड होगी अपने पिछले साल की प्राइस पे जो कि 33 है, 35 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 100 ये आपके पास 106.1 आ जाएगा। इसी तरह से 36 डिवाइड होगी 35 के ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 102.9 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से कॉटन के लिए भी आपने फाइंड करना है और घी के लिए भी फाइंड करना है, और एंड में फिर आपने नेक्स्ट कॉलम क्या करना है, इन तमाम जो आपके पास लिंक रिलेटिव्स आए हैं इनका टोटल लेना है। फर्स्ट जो है वो 400 है तो 400 हो जाएगा। इसी तरह से 1961 के जो लिंक रिलेटिव्स हैं वो आपके पास क्या है, 105 प्लस 106.7 प्लस 110 प्लस 112.5, ये आपके पास टोटल आ जाएगा 434.2, और फिर इसका मीन भी साथ आप लेते जाएं यानी 4 पे डिवाइड करते जाएंगे तो ये आपके पास 108.6 आ गया। इसी तरह से फिर आपने 1962 के जो आपके पास लिंक रिलेटिव आए वो हैं 104.8 प्लस 103.1 प्लस 106.1 प्लस 111.1। ठीक है, और ये आपके पास आ रहा है 425.1 और इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन इसका आ जाएगा 106.3। इसी तरह से हमने 1963 और 64 के लिए भी फाइंड कर लेना है, और एंड पे जो कॉलम होगा वो है चेन इंडाइसिस का। अब चेन इंडाइसिस किस तरह होंगी कि फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आई है, मीन जो हमारे पास आया है उसको एज इट इज़ हम लिख लेंगे। ठीक है, 100 आया है, 100 हम इसी तरह लिख लेंगे। अब इस 100 को हमने मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट मीन से। ठीक है, मीन की जो वैल्यू है नेक्स्ट उससे मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है 108.6 इंटू 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100, तो ये 108.6 आ जाएगा। अब इस ये जो हमारे पास सेकेंड चेन इंडेक्स आया है 108.6, इसको नेक्स्ट मीन से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 106.3 और 100 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास चेन इंडेक्स आ जाएगा फॉर द ईयर 1962 115.4। ठीक है, अब इस 115.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट मीन से जो कि है 107.6 और डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 124.2 फॉर द ईयर 1963।
अब 124.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट मीन की वैल्यू क्या है 104.5 से और 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1964 के लिए जो चेन इंडेक्स आएगा वो है 129.8। ठीक है, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो तब आपको समझ में आएगा। The next example is 5.4b. The question is construct chain indices from the data of example 5.3c. अभी जो हमने पीछे 5.3c जो पार्ट किया है उसमें जो टेबल दिया हुआ है हमें सोप, शुगर, टी और टोबैको वाला डाटा वहाँ से लिया गया है और इस पे हमने इसके चेन इंडाइसेस हमने फाइंड करने हैं। अब चेन इंडाइसेस फाइंड करने के लिए आप अगर आपको ये नहीं कहा गया कि आप कौन सी एवरेज इसमें यूज़ करें तो फिर हम मीन ही उसमें यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई बाउंड नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था कि मीन पहले यूज़ करें, फिर उसने मीडियन का भी कहा। यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बाउंड नहीं है। ठीक है, तो आपने मीन ही यूज़ करना है क्योंकि वो कैलकुलेट करना आपके लिए ईजी है। तो आपने क्या करना है, चेन इंडाइसेस फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने लिंक रिलेटिव्स फाइंड करने हैं। सोप के लिए आपने, फिर शुगर के लिए, फिर टी के लिए, फिर टोबैको के लिए। अब हर अगला ईयर के लिए उसका पिछले ईयर की जो प्राइस होगी वो बेस ईयर प्राइस होगी। हर अगले ईयर की प्राइस अपने पिछले ईयर की प्राइस पे डिवाइड होगी और 100 से मल्टीप्लाई होगी और उसी तरह से आपने लिंक रिलेटिव्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब 1964 के लिए जो है ये अपने ऊपर ही डिवाइड होंगी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये तो सारी की सारी 100 आ जाएंगी। अब 1965 की जो प्राइस है वो है हमारे पास शुगर की जो प्राइस है वो है सोप की जो प्राइस है वो है 1.75 और उसके लिए जो उसका पिछला ईयर है उसकी प्राइस बेस ईयर प्राइस बन जाएगी तो वो है 1.50। उस पर डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 116.7 आ रही है। इसी तरह से नेक्स्ट जो 1966 की जो प्राइस है वो है 2.00 और वो भी डिवाइड होगी उससे पिछला ईयर जो है वो है उसका बेस ईयर बन जाएगा, उसकी प्राइस वो है 1.75। तो 2.00 डिवाइड होगी 1.75 पे और 100 से मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 114.3। इसी तरह से 2.25 जो है 1967 की जो प्राइस है वो डिवाइड होगी 2.00 पे जो कि 1966 की प्राइस है और वो उसके लिए बेस ईयर बन जाएगी, बेस ईयर प्राइस बन जाएगी। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास ये लिंक रिलेटिव इसके लिए आ जाएगा 112.5। ठीक है, इसी तरह से आपने शुगर के लिए, आप शुगर की फर्स्ट तो 100 ही आ जाएगा, नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है प्राइस 1.40 और वो डिवाइड होगी 1.20 पे और 100 से मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू आ रही है 116.7। इसी तरह से शुगर की जो 1966 की प्राइस है वो है 1.50 और वो डिवाइड होगी 1965 की प्राइस पे 1.40 इंटू 100 और ये आ जाएगी 107.1। नेक्स्ट जो प्राइस है 1967 की शुगर के लिए वो है 1.60 डिवाइडेड बाय, वो किस पे डिवाइड होगी 1966 की प्राइस पे क्योंकि वो बेस ईयर बन गया उसके लिए 1.50 इंटू 100 ये आ जाएगा 106.7। इसी तरह से टी के लिए भी हमने लिंक रिलेटिव्स फाइंड करने हैं और टोबैको के लिए भी, फिर उनका टोटल लेना है, उनका मीन लेना है और फिर चेन इंडाइसेस। फर्स्ट जो वैल्यू होगी मीन की एज इट इज हम लिख देंगे और नेक्स्ट मीन से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 115.1। अब 115.1 को फिर हम नेक्स्ट मीन की वैल्यू 109.2 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 125.7 आ जाएगा। अब इस 125.7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 107.4 से और 100 पे डिवाइड तो 135.0 जो है ये हमारे पास नेक्स्ट चेन इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। द नेक्स्ट एग्जांपल इज 5.5a फाइंड चेन इंडाइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है, पहले आपने जो क्वेश्चन अभी किए उसमें आपको प्राइसेस गिवन थी, लेकिन इसका फर्क देखें इस क्वेश्चन का कि जब प्राइस रिलेटिव्स गिवन होंगे तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको प्राइस रिलेटिव्स आर गिवन। ठीक है, प्राइस रिलेटिव्स आपको गिवन है, आपने इनसे लिंक रिलेटिव फाइंड करने।
ठीक है, प्राइस रिलेटिव्स आर गिवन, आपने इनसे लिंक रिलेटिव फाइंड करने हैं और इसका फ़र्क मैं आपको अभी बताती हूँ। सोल्यूशन में आप देखें, ये जो आपका सोल्यूशन है, टेबल आप देखें 1962 है और 1960, 63, 64, 65, 66 एंड 67, ठीक है, ये ईयर्स हैं। और इस टेबल में आपने देखना है कि लिंक रिलेटिव्स आपने फाइंड किए। सबसे पहले लिंक रिलेटिव फाइंड करेंगे तो जो फर्स्ट प्राइस रिलेटिव जब गिवन होंगे, इस चीज़ को आप याद रखें, जब प्राइसेस नहीं होंगी, प्राइस रिलेटिव्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे तो लिंक रिलेटिव फाइंड करने के लिए आप जो ऊपर की फर्स्ट ईयर की जो वैल्यूज होंगी उनको एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें 100 100 हमें गिवन है, ए के लिए भी 100 है, बी के लिए भी और सी के लिए भी 1962 की जो वैल्यूज हैं 100 100 गिवन है, हमने एज इट इज़ उनको लिख दिया है, ठीक है। ये हमेशा याद रखें, क्या बताया मैंने कि प्राइस रिलेटिव जब क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे तो लिंक रिलेटिव फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट ईयर की वैल्यूज होंगी, आप प्राइसेस जो होंगी उनको एज इट इज आपने लिख देना है, उसका आपने लिंक रिलेटिव उस तरह से फाइंड नहीं करना, वो एज इट इज जैसी हैं क्वेश्चन में दी हुई हैं वही की वही उठा के आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। तो यह खुद ही उसका लिंक रिलेटिव होगा। अब आपने नेक्स्ट ईयर के लिए लिंक रिलेटिव फाइंड करना है। नेक्स्ट ईयर की जो प्राइस है वो आपके पास है 105 और इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास 105 है, तो 105 100 पे मल्टीप्लाई होगी और 100 से 100 पे डिवाइड होगी तो ये 105 ही आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो प्राइस है वो आपकी 1964 की वो है 110। अब 110 किस पे डिवाइड होगा, 105 पे और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 104.8 आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट 1964 के लिए आपकी कमोडिटी ए जो है उसकी जो लिंक रिलेटिव है, ठीक है। इसी तरह से 1965 के लिए जो लिंक रिलेटिव आप फाइंड करेंगे फॉर कमोडिटी ए, 115 को आप 110 पे डिवाइड करेंगे, 115 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 तो ये आपके पास जो लिंक रिलेटिव आएगा 104.5, ठीक है। अब अगली जो प्राइस है वो है 116 डिवाइड होगी अपने पिछले ईयर की जो प्राइस है वो कमोडिटी ए की वो है 115, उस पर डिवाइड होगी 116 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 100 तो ये 1966 के लिए आपकी कमोडिटी ए का लिंक रिलेटिव आ गया 100.9, ठीक है। अब अगली वैल्यू है 120 कमोडिटी ए की, 120 डिवाइड होगा 116 पे इंटू 100 तो ये आपके पास 1967 का लिंक रिलेटिव आ गया 103.4, ठीक है। अब आपने कमोडिटी बी के लिए फाइंड करना है। कमोडिटी बी में जो 1963 की है वो 97 है, तो 97 100 पे डिवाइड होगा, 100 से मल्टीप्लाई तो 97 ही आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 94 डिवाइडेड बाय 97 इंटू 100 ये आपके पास 96.9 आ जाएगा। फिर 100 डिवाइडेड बाय 94 इंटू 100 ये आपके पास जो है 106.4 आ गई वैल्यू। फिर 99 डिवाइडेड बाय 100 होगा इंटू 100 ये आपके पास वैल्यू आ गई 106.4 ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह से 105 डिवाइडेड बाय 99 होगी तो आपके पास ये 99 ही आ जाएगी, 99.0, ठीक है। और ये 10 इसके लिए जो कमोडिटी बी है उसके लिए आपके पास आ जाएंगी 99.0 और 1966 के लिए जो आपकी 105 है वो डिवाइड होगा 99 पे इंटू 100 तो 101.6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इसी तरह से सी की आपने लिंक रिलेटिव फाइंड करने हैं। फर्स्ट तो 100 ही आ जाएगा और एज इट इज़ हम उसको लिख देंगे। और नेक्स्ट जो है 1963 के लिए उसकी प्राइस 121 है, तो 121 100 पे डिवाइड होगी और मल्टीप्लाई 100 से होगी तो 121 आ जाएगी। इसी तरह से 125 जो है वो 121 पे डिवाइड होगी और 100 से मल्टीप्लाई होगी तो वो आपके पास जो वैल्यू है 103.3 आ जाएगी। इसी तरह से 130 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 तो आपके पास 104.0
ये आपके पास लिंक रिलेटिव आ जाएगा फॉर 1965। फिर आपने डिवाइड करना है किसको, 128 को 130 पे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1966 के लिए आपके पास 98.5 लिंक रिलेटिव आ जाएगा। फिर 130 को 128 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1967 के लिए आपके पास लिंक रिलेटिव आ गया 101.6। अब हमने इनका टोटल लेना है, उसी तरह से मीन लेना है और फिर चेन इंडेक्स इसका फाइंड करना है। फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे, अगली मीन के साथ मल्टीप्लाई होगा और 100 पे डिवाइड होगा। जो भी चेन इंडेक्स आता जाएगा वो नेक्स्ट मीन के साथ मल्टीप्लाई होगा और 100 पे डिवाइड होगा, तो ये आपके पास चेन इंडेक्स नंबर जो हैं वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएंगे। Now the next example is 5.5b on page 224. Find chain indices from the following price relatives using geometric mean as an average. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारी जो एग्जांपल्स मैंने आपको कराई हैं ये पेपर में आती हैं, आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, आप बेशक आप इनको आपको समझ आ जाए और आपने दोबारा इनको खुद बैठ के नहीं किया तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। आप डू प्रैक्टिस, ठीक है, आपने बार बार इनको करना है, क्वेश्चंस को बार बार इनको सॉल्व करना है। अब हम इसको देखते हैं 5.5 का जो बी पार्ट है, इसमें भी हमें प्राइस रिलेटिव्स गिवन है। अब प्राइस रिलेटिव्स जब गिवन हो तो मैंने क्या बताया आपको कि जब लिंक रिलेटिव आप फाइंड करते हैं तो ऊपर की जो फर्स्ट ईयर की जो वैल्यूज होंगी उसको आप एज इट इज लिख देते हैं। अब देखें इसमें मैंने आपको ये पेन से निशान लगा के बताया है कि 19 लिंक रिलेटिव जब आप फाइंड करने लगे हैं तो 1961 की जो कमोडिटीज की जो प्राइसेस हैं वो आपने एज इट इज लिख दी हैं, ठीक है, वो आपने लिख दी। अब आपने नेक्स्ट के लिए आपने लिंक रिलेटिव फाइंड करना है। अब 1962 का लिंक रिलेटिव हम फाइंड करेंगे फॉर कमोडिटी ए, तो ये किस पे डिवाइड होगा, 62 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 73। फिर 104 को हम डिवाइड करेंगे 62 पे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 168 आ जाएगा। इसी तरह से 93 इज डिवाइडेड बाय 104 इंटू 100, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 89, ठीक है। इसी तरह से 60 को हम डिवाइड करेंगे 93 पे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेक्स्ट लिंक रिलेटिव फॉर 1960 फॉर कमोडिटी ए आ जाएगा 65, ठीक है। अब बी जो कमोडिटी है उसका देखें, फर्स्ट तो एज इट इज आ गई वैल्यू, अगली वैल्यू क्या है 54 डिवाइड होगी 72 पे इंटू 100 तो ये आपकी वैल्यू आ गई 75, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट 87 डिवाइडेड बाय 54 इंटू 100, ये आपकी वैल्यू आ गई 161। फिर 75 डिवाइडेड बाय 87 इंटू 100, ये आपकी वैल्यू आ गई 86। फिर 43 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, ये आपकी वैल्यू आ गई 57, ठीक है। इसी तरह से सी के लिए आपने फाइंड करना है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी और फिर नेक्स्ट वैल्यू है 128 इज डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 116। 111 को आप डिवाइड करेंगे 128 पे और इंटू 100 तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 87, ठीक है। 154 डिवाइडेड बाय 111 इंटू 100, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 139। अब 165 डिवाइडेड बाय 154 इंटू 100 तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 107। अब कमोडिटी डी के लिए हमने देखना है। अब फर्स्ट जो वैल्यू है, क्योंकि प्राइस रिलेटिव्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, प्राइसेस नहीं है, प्राइस रिलेटिव्स गिवन है, तो फिर हम फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिख देते हैं। अगली वैल्यू क्या है 82 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 100 तो ये हमारे पास 49 आ गया। 100 डिवाइडेड बाय 82 इंटू 100, ये नेक्स्ट वैल्यू 122 आ जाएगी। इसी तरह से 96 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 तो 96 ही आ जाएगी और 88 डिवाइडेड बाय 96 इंटू 100 तो ये 92 आ जाएगी। अब आपके पास आपने इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। अब आपकी मर्जी है, ज्योमेट्रिक मीन में आप लॉग वाला फार्मूला भी यूज करते हैं और आप बेसिक डेफिनेशन से भी इसको करते हैं। मैं तो आपको यही कहूंगी कि आपकी मर्जी है, आपने जो भी मेथड इसमें यूज करना है। अगर आपने लॉग वाला मेथड इसमें ज्योमेट्रिक मीन का यूज करना है
हैं तो फिर हर एक लिंक रिलेटिव की जो वैल्यू है हर एक का आपने नीचे देखें आपको नज़र आ रहा है ये लॉग फाइंड किया हुआ है, ठीक है। लॉग ऑफ 85, 72 का लॉग, फिर 110 का लॉग, 65 का लॉग, इस तरह से 73 का लॉग, 75 का लॉग, 116 का, हर वैल्यू का लॉग लेके फिर उसका सम किया गया है, समेशन लॉग एक्स, और उसको फिर n पे डिवाइड किया गया है। n कितना है 4 है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन आता, उसका फिर एंटी लॉग लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन आएगा, ठीक है। और लास्ट का कॉलम क्या होगा, चेन इंडेक्स का होगा। अब ज्योमेट्रिक मीन इस मेथड से अगर आपको आसान लगता है आप इससे फाइंड करें, नहीं तो आप बेसिक डेफिनेशन का फार्मूला जो है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी होल रेज टू पावर 1/4 उस तरह से भी आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये लिंक रिलेटिव है 85 इंटू 72 इंटू 110 इंटू 65, इसको मल्टीप्लाई करें और इसकी पावर 1/4 लें तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन यही आएगा 81.32, ठीक है। तो वो आपके लिए कैलकुलेशंस कम करनी पड़ेंगी, आपको इतने सारे कॉलम जो हैं वो नहीं फाइंड करनी पड़ेंगे, सिर्फ एक ही होगा कि आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी पावर 1/4 लेते जाएंगे, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन का जो फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं और आपको पता है, ठीक है। वो अगर आपको आसान लगता है उसमें यह है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको कम करनी पड़ेंगी और कम वक्त में जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ऐसा मेथड जो है, आपको बार बार मैं कहती हूँ कि ऐसा मेथड आप अडॉप्ट करें क्योंकि पेपर लेंथी होता है, उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस आपने करनी होती हैं, तो आप ऐसा मेथड अडॉप्ट करें जिसमें आपका टाइम कम लगे और कैलकुलेशंस भी आपको कम करनी पड़े, ठीक है, और जल्दी से आपका क्वेश्चन हो जाए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें फुल लॉन्ग क्वेश्चन 13 मार्क्स का आपका आता है पेपर में, ठीक है। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है इंडेक्स नंबर को। अगर एक ये आप चैप्टर जो है ये आप कर लेते हैं तो इसमें 13 मार्क्स का आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है, 2 इसमें आपको एमसीक्यूज आते हैं, वो 2 नंबर हो गए, और एटलीस्ट 2 होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। तो कितने हो गए, 6 मार्क्स वो हो गए, 8 एंड 13 कितने हो गए, 21 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे सिर्फ एक ये चैप्टर अच्छे तरीके से करने से। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको यूजिंग मीन, यूजिंग मीडियन, यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है, ठीक है। तो आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं आपको इस चैप्टर के उसमें आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन दूंगी, एक्सरसाइज के तकरीबन क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हुए हैं, लेकिन आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, इसलिए मैंने आपको और काम इतना नहीं दिया कि आप इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने ज्योमेट्रिक मीन इसका फाइंड कर लेना है और फिर उसी तरह से फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिख के अगली जो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास चेन इंडेक्स आ जाएंगे, ठीक है। Question 5.5 Part A from your exercise on page 248. Given the prices of 4 commodities, construct price index numbers by simple aggregate method taking 1960 as base. अब इसमें ये देखें क्वेश्चन आपको गिवन है, ईयर्स हैं 1991 से लेकर 1994 तक और कमोडिटीज़ हैं ABC, ये वैल्यूज़ आपको गिवन है, ठीक है। 1991 की जो वैल्यूज़ हैं उनका आपने टोटल किया तो आपके पास 332 आ गया। इसी तरह से क्योंकि आपके पास क्या फार्मूला है सिंपल एग्रीगेट का, समेशन पी एन ओवर समेशन पी नॉट, यही होता है ना। तो समेशन पी नॉट जो है वो आपके पास 332, क्योंकि 1991 जो है वो आपके लिए बेस ईयर है, 1991 बेस ईयर है, तो ये आपकी पी नॉट समेशन पी नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला क्या है इसमें, समेशन पी एन ओवर पी नॉट समेशन पी नॉट इंटू 100। अब आपने नेक्स्ट जो आपकी 1992 की जो प्राइस है वो आपका टोटल आ रहा है आपका जो टोटल आ रहा है उसको आपने इसके टोटल पे डिवाइड करना है बेस ईयर के टोटल के ऊपर, ठीक है, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो टोटल आपका 1993 का इन तीनों वैल्यूज़ का जो आ रहा है वो उसको आपने बेस ईयर के जो टोटल आ रहा है बेस ईयर प्राइसेस का उस पर डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से तमाम
उसके लिए ईयर्स के लिए 1994 के लिए भी आपने फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5.5 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5.5 पार्ट बी ऑन पेज 249, इसी क्वेश्चन का ये बी पार्ट है और ये क्वेश्चन है कंप्यूट द इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड विद 1949 एज बेस ईयर फॉर द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। अब इसमें भी 1949 जो है वो बेस ईयर है, उसका टोटल हमारे पास 185.1 आ रहा है। तो हम हर जो टोटल होगा जितनी भी ईयर्स हैं उन सब के टोटल को हम 185.1 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल एग्रीगेट मेथड आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 5.6 फ्रॉम योर एक्सरसाइज पार्ट ए है, द एवरेज प्राइसेस इन रुपीज ऑफ सर्टेन कमोडिटीज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। आपने जो है फाइंड क्या करना है, कन्वर्ट द प्राइसेस ऑफ व्हीट शुगर एंड मिल्क इनटू रुपीज पर मंथ इन द टेबल एंड कंप्यूट द सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडाइसेस फॉर 1958 to 1960 यूजिंग 1957 एज बेस, ठीक है। 1957 जो है ये बेस ईयर है और साथ में आप को यूनिट भी बता दिए हैं कि 1 मंथ में कितने केजी होते हैं, 40 केजी होते हैं और 28 मंथ जो है वो 1 टन के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमने जो है ये देखना है कि जिनके यूनिट जो हैं वो सेम है, तो वो हमने उसने क्या कहा है कि व्हीट शुगर और मिल्क जो है उनकी हमने प्राइसेस जो हैं वो उन कमोडिटीज़ की वो हमने पर मंथ में हमने लेनी है। तो हमने शुगर को भी चेंज करना है और मिल्क को भी और व्हीट की प्राइस को भी, पर टन है तो हम उसको पर मंथ में लेके आएंगे, ठीक है। अब देखें 1957 तो है बेस ईयर। अब व्हीट की प्राइस इसमें देखें, व्हीट की प्राइस आपके पास है 351, ठीक है। अब टन है, टन बड़ा है, उसको जब कम में लाने के लिए, मंड उससे कम है तो उसमें लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 40 पे डिवाइड कर देंगे तो इसकी प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। पहले तो हम सिंपल एग्रीगेट मेथड इस पे अप्लाई करते हैं, जो कि उसने हमें कहा है कि सिंपल एग्रीगेट हम इसका इन्हीं प्राइसेस का हम फाइंड कर लेते हैं जो कि हमें गिवन है एज इट इज़, ठीक है। अब देखें इसमें व्हीट की जो प्राइस है वो 351 है 1957 के लिए, फिर 335 है 1958 के लिए, फिर 325 एंड 1960 के लिए 372 है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। इसी तरह राइस की प्राइसेस जो हैं वो हमारे पास पर मंथ में दी हुई हैं, वो है राइस की जो है वो 35 है, फिर 32 है, 39.50 है और 41.75 है। इसी तरह फिर सॉल्ट की दी हुई है 10 है, 11 है, 11.50 है और 12 दी हुई है। इसी तरह से शुगर की 1.25 है, 1.40, 1.50 एंड 1, ठीक है। और क्लॉथ की दी हुई है 2.25, 2.0, 2.50 एंड 2.05। फिर मिल्क की हमें दी हुई है 0.75, 0.85, 0.90 एंड 0.95 फॉर 1960। हमने क्या करना है, सबसे पहले सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स फाइंड करने के लिए उसका क्या फार्मूला होता है, समेशन पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100। ये मैंने पीछे यहाँ पे आपको लिख के बताया हुआ है, समेशन पी एन ओवर समेशन पी नॉट इंटू 100, समेशन है इसके साथ, समेशन पी एन ओवर समेशन पी नॉट इंटू 100। आप समेशन पी एन जो है, पी नॉट जो है 1957 जो है वो आपका बेस ईयर है, तो इसकी तमाम जितनी भी कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं उन सब का सम हमारे पास आ रहा है 400.25, ठीक है। हमने हर टोटल को इसके ऊपर डिवाइड करना होगा, ठीक है। ये हमारा समेशन पी नॉट हो गया। अब 1951 के लिए जो हमारा सम आ रहा है वो है 382.25 और इसको हम डिवाइड करेंगे 400.25 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा टोटल आ रहा है वो 380.90 है और उसको हम डिवाइड करेंगे 400.25 से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1959 के लिए हमारा सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स आ जाएगा। इसी तरह से 1960 के लिए जो हमारा टोटल आ रहा है 429.75, उसको हम डिवाइड करेंगे
400.25 से, तो हमारे पास और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इसका सिंपल एग्रीगेट आ जाएगा। इसमें देखें जो नेक्स्ट है उसमें उसने हमें ये कहा है कि आपने वीट, शुगर और मिल्क की जो प्राइसेस हैं उनको हमने चेंज करना है पर मंड में। अब इसको दोबारा हमने इसका सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स लेना होगा। अब पर मंड में कैसे चेंज करना होगा कि इसमें देखें हमारे पास जो वीट है वो हमारे पास टन में उसकी प्राइस हमें गिवन है, तो टन से जब मंड में करते हैं तो क्या करते हैं उसको 40 पे डिवाइड करेंगे आप, क्योंकि टन बड़ा है और मंड छोटा है तो उसको 40 पे हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है 1957 के लिए वीट की वो आ जाएगी 12.54 मंड। ठीक है, अब हमने टन से उसको मंड में कर दिया। अब हम नेक्स्ट हमने किस की प्राइस को चेंज करना है, शुगर की प्राइस को हमने चेंज करना है। नेक्स्ट तो हमारे पास शुगर की प्राइस हमारी चेंज होगी और राइस की उसमें राइस की वैसी आ जाएंगी, राइस की हमने चेंज नहीं करनी। इसी तरह से सॉल्ट की भी वैसी आ जाएंगी, वो भी हमने नहीं चेंज करनी, और शुगर की हमने चेंज करनी। अब शुगर की प्राइस देखें, फर्स्ट जो है वो 1.25 पर केजी हमें दी हुई हैं ये प्राइसेस, हमने इनको मंड में करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 40 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कम से हम ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 40 से इसको, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी शुगर के लिए 50। ठीक है, इसी तरह से 1.40 को भी हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 56 आ जाएगी वैल्यू, और फिर 1.50 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 60, और इसी तरह से नेक्स्ट के लिए हमारे पास आ जाएगी 40, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास शुगर के लिए आ गई। अब क्लॉथ की हमने नहीं चेंज करनी, उसको एज इट इज लिख देना है, और मिल्क की फिर पर केजी हमें प्राइस की हुई है, हमने इसको भी मंड में करना है। तो क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.75 है फर्स्ट वैल्यू, हम उसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। फिर 0.85 है उसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 आ जाएगा। फिर 0.90 है उसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। फिर 0.95 है उसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 38 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इन तमाम जो कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं हमारे पास, इनका हमने सम लेना है और फिर सिंपल एग्रीगेट। फर्स्ट का जो है वो अपने ऊपर ही डिवाइड होगा टोटल, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये नेक्स्ट जो हमारे पास टोटल है वो है 146.96 डिवाइडेड बाय 139.79। 139.79 पे ही सारे टोटल डिवाइड होंगे क्योंकि 1957 जो है वो बेस ईयर है। ठीक है, तो तमाम जो टोटल हैं वो इस पे डिवाइड होंगे, 100 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स जो हैं ये हमारे पास आ जाएंगे। Question 5.7 from your exercise, construct chain indices for the following years taking 1940 as base. चेन इंडाइसेस हमने फाइंड करने हैं। चेन इंडाइसेस फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, लिंक रिलेटिव्स लेते हैं। हमें प्राइसेस गिवन है तो हम लिंक रिलेटिव, हर अगला ईयर जो है कि उसकी प्राइस जो होगी वो पिछले ईयर की प्राइस उसके लिए बेस ईयर प्राइस होगी। अगले ईयर की प्राइस जो है वो अपने पिछले ईयर की प्राइस पे डिवाइड होगी और 100 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारे पास लिंक रिलेटिव आ जाएंगे। फिर उनका टोटल लेंगे, फिर उनका मीन लेंगे और फिर चेन इंडेक्स, जैसे हम पीछे एग्जाम्पल में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने यहाँ से देखना है। फर्स्ट क्या है कि 1940 की जो वैल्यूज हैं वो अपने ऊपर डिवाइड होंगी और 100 से मल्टीप्लाई होंगी तो तमाम 100 आ जाएंगी। इसी तरह से नेक्स्ट जो प्राइस है वीट के लिए 1941 की 3.4 है और ये डिवाइड होगी उसकी पिछली 1940 की प्राइस पे 2.8 है, तो 100 से मल्टीप्लाई होगी, ये नेक्स्ट उसका लिंक रिलेटिव आ जाएगा। फिर इसी तरह से अगली वैल्यू जो है वो है 3.6 और वो डिवाइड होगी पिछले ईयर की प्राइस पे जो कि 3.4 है और 100 से मल्टीप्लाई होगी लिंक रिलेटिव। इस तरह राइस के लिए, मेज के लिए, सब के लिए आपने फाइंड करना है। नेक्स्ट है 5.7 का बी पार्ट, कंस्ट्रक्ट द चेन इंडाइसेस फॉर द फॉलोइंग डाटा फॉर प्राइस रिलेटिव्स अब फॉर द ईयर 1940 टू 1944। अब इस क्वेश्चन में प्राइस रिलेटिव्स गिवन है।
जैसे कि आपने एग्जांपल में किया है और मैंने आपको बताया है। अब प्राइस रिलेटिव जब क्वेश्चन में गिवन होते हैं तो फिर क्या करते होते हैं, फिर एज इट इज़ फर्स्ट ईयर की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। हमने यहाँ भी ऐसे ही किया, ठीक है, 98, 75, 82 और 99 को एज इट इज़ लिख दिया है। और बाकियों के लिए हमने लिंक रिलेटिव्स फाइंड करने हैं, फिर उसका मीन, फिर उसी तरह से चेन इंडाइसेस जो है आपने लेनी है। क्वेश्चन 5.7 पार्ट सी फ्रॉम योर एक्सरसाइज ऑन पेज 250। ये क्वेश्चन है और इसमें देखें आपको जो डाटा गिवन है और इसमें ए बी सी 3 कमोडिटीज़ हैं। तो आपने फाइंड क्या करना है इसमें, कंप्यूट द चेन इंडेक्स नंबर्स यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज एंड टेकिंग 1931 एज बेस फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपने ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करके आपने चेन इंडाइसेस फाइंड करनी है। अब यहाँ पे मैंने आपको वो बेसिक जो फार्मूला है, बेसिक डेफिनेशन का ज्योमेट्रिक मीन का, वो आपको करके बताया है, ठीक है। अब आपने लिंक रिलेटिव्स लेने हैं। सबसे पहले चेन इंडाइसेस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लिंक रिलेटिव्स लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कमोडिटीज़ की प्राइसेस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, लिंक रिलेटिव्स लेने के लिए हर अगली वैल्यू अपनी पिछली वैल्यू पे डिवाइड होगी और 100 से मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट वैल्यू जो 2000 की है वो तो अपने ऊपर डिवाइड होके 100 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 100 आ जाएगा तीनों में। और 2001 की प्राइस जो है कमोडिटी ए के लिए 4 है, तो वो पिछले ईयर की प्राइस जो है वो 4 है, 4 पे डिवाइड होगा और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 100 आ जाएगा। इसी तरह से 7 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 175 आ जाएगा। 8 जो है वो 7 पे डिवाइड होगा और 100 से मल्टीप्लाई, तो 114.29 आ जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट वैल्यू अपने ऊपर बी कमोडिटी में आ जाते हैं। उसमें देखें 10 जो है वो 10 पे डिवाइड होगा, 100 से मल्टीप्लाई तो 100 आ जाएगा। 6 10 पे डिवाइड होगा और 100 से मल्टीप्लाई तो 60 आ जाएगा। 9 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 150। और इसी तरह से 10 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100 तो 111.11 ये आपके पास आ जाएगा। और इसी तरह से कमोडिटी सी में हम देखेंगे 20 पे डिवाइड होगा और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा। 23 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 115 आ जाएगा। 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 100 108.70 आ जाएगा। 30 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 ये आपके पास 120 आ जाएगा। अब आपने ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो बेसिक फार्मूला है, बेसिक डेफिनेशन का, वो क्या है, x1 इंटू x2 इंटू x3 होल रेज टू पावर 1/3। ज्योमेट्रिक मीन ये इसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। आपने क्या करना है, इन तमाम तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और 1/3 उसकी पावर लेनी है, वो आपके पास 100 ही आ रहा है। फिर आपने 2001 की जो तीनों वैल्यूज़ आपके पास जो लिंक रिलेटिव की आई हैं उन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और उसकी पावर 1/3 लेनी है। ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 88.37। नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ रहा है 141.84, उससे अगला 115.07 आ रहा है। तो अब चेन इंडाइसेस का कॉलम हमने करना है, तो उसमें फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते हैं और अगली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर जो आंसर आता है उसको फिर अगली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे यहाँ पे मीन है या ज्योमेट्रिक मीन है या मीडियन है, जो भी है, तो उसको 100 पे डिवाइड करते हैं, ये आ जाता है। फिर नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं 100 पे डिवाइड, तो हमारे पास नेक्स्ट चेन इंडेक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन की आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज होम टास्क। क्वेश्चन नंबर 5.5 और 5.7 तो मैंने आपको बता दिए हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन नंबर 5.6 जो है ये आपने एक्सरसाइज से सॉल्व करना है, ठीक है। और आपने फिर सेंड करना है मुझे सब्जेक्ट ग्रुप में।